Ready? Final now, annual exam syllabus, right? Part of annual exam syllabus. Chapter number 17, locomotion and movement, right? First, what is locomotion? What is locomotion? Movement. अब locomotion simple language में किसको बोलोगे? Change place, right? One place to another we call locomotion. तो फिर किसको movement बोलेंगे हम? Voluntary actions ऐसा. It can be voluntary, involuntary, है ना? Food pass हो रहा है, so it can be involuntary movement. Movement क्या है? I'm asking about that. What is movement? Locomotion clear है, that change the place. But what is movement? अगर हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, राइट? ये पोजीशन ओवर हियर, हैंड्स तो वही पोजीशन पे है ना, बट दिस वन वी कॉल मूवमेंट, राइट? विद द हेल्प ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, टिश्यूज दैट वी कैन डू दिस मूवमेंट, राइट? Locomotion, with the help of this different movements, we can change the place. Now, so first locomotion and movement. Can I say that all locomotions are movement? Yes. All locomotions are movement. Can I say that all movements are locomotion? No. Right? So main statement based MCQs के लिए ये दो lines learn करनी है, right? Which is given in your introduction part, that all locomotions are movements, but all movements are not locomotion, right? Now, think about the other organisms other than the human, right? Human के पास क्या है? पहले तो human का ही सोच लो. Human के पास क्या है which can help to change the place? Limbs, है ना? We use hind limbs. Next one, birds के पास है कुछ? Wings, four limbs, even walk कर वे होते हैं जो वो, that's a hind limbs in case of aquatic birds, right? Next, what about amoeba? Amoeba can change their position, location, right? So that is with the help of what? Pseudopodia, है ना? Jellyfish, tentacles, remember, है ना? That movements. Next, starfish, which system? Water canal system. Transport. Water vascular system. Which one? Water vascular system. And by that way, पता है वो, that's the tube fits are there, so many jerky movements, है ना? So different organisms. Fishes have what? Gills. Fins. Gills for respiration, right? Fins. With the help of that movement, that fish can change their position, right? So different organisms have different structures to change their position to show the locomotion. Clear? Now, in this chapter, two parts are given. Initial part given, that is related to the muscles, right? For entire muscles, हमारे muscles कैसे help करते हैं for the locomotion, for the movement. And second part given in this chapter, the total number of bones, our skeleton entire, right? See, main, that is the axial part. आप देखो हमारा skull region, right? And the main, this one we call, see, this is the axial. हमारा vertebral column है, and on that skull. वो हमारा axial part हुआ, right? And then we have limbs, है ना? This one we call appendicular skeleton. So by this way, entire human body is formed. Right? So remember, four that's the structures over here. Limbs hai, then this skull region, means axial skeleton, and other is a which one? Appendicular skeleton. Simple, right? And axial plus appendicular skeleton is equal to 206 bones in adult human.
in an adult human. In newborn babies, the number of bones are more compared to the adult. In newborn babies, right, remember, the number of bones are more compared to the adult, right? In newborn babies, because whenever the baby is delivered outside through the birth canal of the mother, right, for that certain bones need what, that flexibility. अगर वो bones join होके firm बन गए तो वो movement possible नहीं होता है, right? Gradually in that bones join with each other and become firm. Clear? So first, in an adult, how many bones are there? 206. That we are going to learn today. Right? तो हम first skeleton part complete करेंगे and then we will start with the muscles. Clear? So first one, that is this skull. Skull, this part you call what? Front. So we call frontal. Which one? Frontal. Right? यहाँ पे जो bone है आप touch करो आपको hard feel होता है, right? So this one we call frontal. Right? नेक्स्ट, ये फ्रंटल के साइड्स पे, ईयर के ऊपर के साइड्स पे, ओवर हियर 2 बोन्स आर देयर, वी कॉल पैराइटल. सी ये फ्रंटल हुआ, दिस वन इज अ विच वन? पैराइटल. कितने फ्रंटल है हमारे? फ्रंटल 1, राइट? फ्रंटल बोन 1. फिर उसके साइड्स पे 2 साइड्स है, लेफ्ट एंड राइट. सो हाउ मेनी पैराइटल बोन्स आर देयर? 2, राइट? हाउ मेनी पैराइटल बोन्स? 2. देन नियर द ईयर, हम बोलते हैं ना साउंड के लिए टेम्पो, अप एंड डाउन, तो ये बोन को बोलते हैं टेम्पोरल बोन. विच वन? टेम्पोरल. टेम्पो वर्ड यूज फॉर साउंड, राइट? सो जस्ट नियर द ईयर ओवर हियर, टेम्पोरल. एंड एग्जैक्टली एट द बैक साइड one bone is there, we call occipital. Which one? Occipital. Right? हम पहले skull के काउंट कर रहे हैं, right? Cranial bones. skull में भी first which one? Cranial bones. Cranium क्या होता है? In which brain is located, right? So first one is a which one? Frontal. How many? 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital. कितने हुए टोटल? 6 हुए, 2 बाकी है, right? Now not exactly left and right, but in this ear part only at one side, right, at the center, and but that bone, 2 bones were there. These bones are located inner side, and वो ऐसे located हैं inner side से that they can join other bones also. These bones are sphenoid and ethmoid. Which 2 bones? Sphenoid and ethmoid. See, book में इतना लिख के दे दिया है. In cranium 8 bones are there, right? But remember, diagram में दिया है तो आपको वो आना ही चाहिए. Theory में नहीं दिया है, diagram में दिया है. Clear? So first, कौन से बोन? ऐसा नहीं, 1 फ्रंटल नंबर के साथ, 1 occipital, 1 sphenoid, 1 ethmoid, right? 1 sphenoid and 1 ethmoid. जनरली पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये बोन्स जो होते हैं स्कल के, राइट, वो हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट जो स्फीनॉइड एंड इथमॉइड है, दे आर इंटरनली प्रेजेंट, दे आर इंटरनली लोकेटेड, राइट? तो याद रखना, स्फीनॉइड, इथमॉइड इंटरनली लोकेटेड होता है, राइट? नाउ नेक्स्ट, पहले इतना क्लियर. नाउ ये पार्ट में हमारे स्कल में, राइट, हमारे स्कल में हमने क्रेनियम किया और कुछ बोन्स हमें काउंट करने चाहिए. हमारा फेशियल बोन्स है ना, फेशियल बोन्स नाउ वी आर गोइंग टू काउंट. फर्स्ट वन, इन दैट ओवर हियर, ये जो यहाँ पे शेप क्रिएट होता है ना, इन दिस वन वोमर बोन इज प्रेजेंट. विच वन? नेक्स्ट स्लाइड. Vomer bone. Can you make out this over here? Right? This one is a which one? Vomer. Nose के नीचे, right? Vomer bone. एक ही होता है, single vomer bone. Next one, that is inferior nasal conchae. ये पार्ट को जो स्टेबल करते हैं, शेप में रखता है, ये होता है inferior nasal conchae. बोलो. Inferior nasal conchae. 2 in number.
फिर यहाँ पे होता है नेजल बोन, ये जो है ना आईब्रोज पे यहाँ पे, दैट्स अ विच बोन, नेजल बोन, दैट इज ऑल्सो 2, राइट. 1 वोमर, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्चे, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्चे एंड 2 नेजल बोन्स. क्लियर, राइट. यहाँ पे 2 पार्ट्स में होते हैं. 1 vomer, 2 inferior nasal conchae and right over here 2 nasal bone. Nasal bone का यहाँ पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं है, दिया ही नहीं. नेक्स्ट वन, ये पोर्शन क्लियर यहाँ तक, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज आईज के पास आए हमने यहाँ से स्टार्ट किया आईज के पास. तो आईज में कैन यू फील दैट ओवर हियर आईज के साइड्स का आपको कैविटी जैसा फील हो रहा है, हार्ड स्ट्रक्चर पहले तो. So our eyes are located in this bony cavity. उसको ऑर्बिट बोलते हैं पहले तो, कैविटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. ये जो बोन कैविटी बना रहा ना, यू कैन फील दैट. आप जैसे जैसे आइस को तो राउंड आपको फील होगा पूरा. दिस वन वी कॉल lacrimal bone. Which one? Lacrimal bone. Which one? Lacrimal bone. Which one? Lacrimal bone. How many? 2. 2 lacrimal bones are there. बोलिए, क्लियर. फर्स्ट कौन सा किया फेशियल में? 1 2 2 बोन्स, 2 नेसल बोन्स, 2 लैक्रिमल बोन्स. लैक्रिमल बोन से यहाँ पे जो ग्लैंड्स है जिसमें से वो टीयर्स आते हैं, दैट्स वी कॉल लैक्रिमल ग्लैंड, राइट. नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट यहाँ पे जो ये पूरा हमारा चिक का प्रॉपर शेप है ना, सो उसके लिए भी यहाँ पे बोन है पूरा. दिस वन वी कॉल zygomatic bone. Which one? Zygomatic bone. Which one? Zygomatic bone. Which one? Zygomatic bone. कितने होंगे? 2. Yes, 2. One on left, other on right. 2. That's the zygomatic bone. Next one. फिर over here in this part, this is our jaw line, right? तो यहाँ पे जो एक सिंगल है, दिस वन वी कॉल मैंडिबल. विच वन? मैंडिबल. विच वन? मैंडिबल. 1 मैंडिबल. कितने? 1 मैंडिबल. एंड यहाँ पे होते 2 मैक्सिले. विच वन? 2 मैक्सिले. नंबर 2, राइट. सो मैक्सिले एंड हियर इज द विच वन? मैंडिबल, राइट. मैक्सिले, मैंडिबल, मैक्सिले, मैंडिबल. क्लियर, ये जॉ लाइन के लिए. नेक्स्ट मैडम, चलो 1 mandible, right. And then next when we open up our buccal cavity, right, and then when you touch the roof part, so that roof part is harder or the softer. Which one? So that is palatine bone. Which one? Palatine bone. Over there which bone is present? Palatine bone. कौन सा? Palatine bone. When we open up our oral cavity, right, वन थिंग पता वो एडवर्टाइज देखा होगा, विक्स की गोली लो, तो वहां पे वो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है. पोस्टीरियरली वो सॉफ्ट है, एंटीरियरली हार्ड स्ट्रक्चर जो है, राइट, दैट इज अवर पैलेटाइन बोन. विच वन? पैलेटाइन बोन. क्लियर. सो नाउ कितने काउंट किए? चलो फर्स्ट वन, वेट, हाँ, क्रेनियल में हमने कितने किए थे? क्रेनियल बोन्स 8, राइट. नेक्स्ट नाउ द फेशियल बोन्स, काउंट करके. फर्स्ट 1 वोमर, देन नेजल कॉन्चे, 2 नेजल कॉन्च, 2 maxilla, 2 maxilla, 1 mandible and 2 palatine. 2 which one in the left, right? Palatine. कितने हुए? 40 हो गए. श्योर. सो फेशियल बोन्स कितने हैं? 14, राइट. स्केलेटन इज, as I said, divided into 2 parts, axial and other is a which one? Appendicular skeleton. Axial में 80 बोन्स होते हैं. कितने? 80. हम 80 अभी काउंट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ इन दैट 8 + 14 कितने हुए? 22.
और कुछ बाकी रहता है हमारे फेस पे? ईयर्स बाकी है. नेक्स्ट स्लाइड. ईयर इन दैट वन मोर. ओके. ईयर आई थिंक सो लोअर स्टैंडर्ड में है. इन दैट द बोन्स आर देयर मेलियस इंकस स्टेप्स, ऐसे हैमर शेप का होता है, ऐसा कुछ है? नहीं है. ओके. सी दिस इज द एक्सटर्नल ईयर, राइट? ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है ओवर हियर. नेक्स्ट दैट इज द मिडल ईयर. इन दिस पार्ट इज व्हिच वन? मिडल ईयर, राइट? ओवर हियर ये सॉरी माय मिस्टेक, यहां से दिया एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर, राइट? यू कैन फील, राइट, दैट्स द ईयर बर्ड कैन इंसर्ट, है ना? तो कैविटी है वहां पे. क्या है? कैविटी. सो ये पूरा पोर्शन एक्सटर्नल ईयर का हुआ. नेक्स्ट हियर द मिडल ईयर इज देयर. व्हिच वन? मिडल ईयर. तो ये मिडल ईयर का पार्ट है. मिडल ईयर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स. वहां पे क्या है? 3 बोन्स. एंड देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, उसमें ऐसे जलेबी जैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो दैट वी कॉल कॉक्लिया. उसको क्या बोलते हैं? कॉक्लिया. इंटरनल ईयर कॉक्लिया, राइट? जिसको हियरिंग डिसेबिलिटी होती है तो कॉक्लिया ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं. क्लियर? अगर कॉक्लिया में ट्रबल है तो इन दैट वे. सो एक्सटर्नल ईयर है, मिडल ईयर है, एंड द विच वन? इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल ईयर जो है दैट रिसीव्स द साउंड्स, राइट? एंड बट जो साउंड्स, उसका जो इंटेंसिटी होता है दैट विल बी वेरी लो. दैट कैन नॉट बी डायग्नोस्ड बाय अवर दैट सेंसरी रिसेप्टर्स. So it should be what? Amplify. It should be what? Amplify. तो जो sounds आ रहे उसको amplify कौन करके देगा? मिडल ईयर. मिडल ईयर की ये जो 3 बोन्स है, राइट, वो उसको amplify करके देते हैं. पता है, जैसे अगर हम ये लेक के पास या कहीं पे बैठे और पत्थर डालते हैं तो एक ही पॉइंट पे होते हैं बट उसके वाइब्रेशंस कितने स्प्रेड होते हैं. सेम वे यहाँ पे ये वर्क करता है, एम्प्लीफिकेशन करना, right? 3 bones are there. Name Malleus. First bone name is a which one? Malleus. Repeat. Malleus. Second, Incus. Which one? Incus. Second, Incus. Third, Steps. Third, Steps. Repeat. First, Malleus. Incus. Steps. Repeat. Malleus. Incus. Steps. Repeat. Malleus incus steps. Steps is the smallest bone of our body. Remember, steps जो है that is the smallest bone of our body, right? Malleus जो hammer shape का होता है, hammering करना, right? One by one in this way, continuously वो vibrations का according work करता रहता है, right? So first remember middle ear in that 3 bones are there, malleus, incus and steps, right? कितने होंगे malleus? 2. 2 है ना ear, left right. So malleus 2, incus 2, steps 2. So ear bones, और इसको बोलते हैं ear ossicles. ear bones को ही क्या बोलते हैं? ear ossicles. कितने हुए टोटल? 6, right? टोटल 6. So अभी टोटल कितना हुआ? 28. हमने अब तक 28 बोन्स काउंट किए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. कैन यू टेल मी आवर टंग इज अटैच्ड ऑन विच साइड और फिक्स्ड ऑन विच साइड? एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड? एंटीरियर फ्री है ना, बट पोस्टीरियरली आप मूव कर सकते हो? नहीं, वो फिक्स पोजीशन पे. तो ओवर हियर इन दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे यू शेप का एक सिंगल बोन है that we called hyoid bone. Which one? Hyoid bone. 1, right? Which bone? Hyoid bone. Which one? U shape, right? Just at the base of the buccal cavity. U shape का एक सिंगल बोन है where our tongue is fixed. That bone we call which one? Hyoid bone, right? Hyoid का पोजीशन जो है ना वो नेक में है बेसिकली, तो उसको हम स्कल में नहीं ले सकते, राइट? ओल्ड बुक था, उसमें दिया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ दैट द स्कल. नो, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन. इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सियल स्केलेटन. सो न्यू बुक में इसके लिए क्या लिखा हुआ है? ये पेज है ना स्कल का, उसके लास्ट 2nd 3rd लाइन पे देखो. हाँ,
स्कल ही लिखा हुआ है, अदरवाइज एनसीईआरटी में वो दिया है कि इट इज नॉट, करेक्शन कर देना आ गया है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कल, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन। बोलिए क्लियर? क्यों उसको स्कल में नहीं? बिकॉज वो बेस ऑफ द बकल कैविटी है, बकल कैविटी के नीचे का पार्ट नेक रीजन में है। मिला पहले तो सबको? अंशी चलो डन। रिवीजन 29 बोन्स का फर्स्ट, चलो फर्स्ट बोन क्रेनियल बोन्स, फर्स्ट क्रेनियल, राइट? क्रेनियल में फर्स्ट one frontal, always remember with number, one one sphenoid, one ethmoid, repeat, one, so total 8 bones, huh? Okay, one frontal, right? Two parietal, two, one, two, two, four, two, six, two plus two, four, right? Two plus two, four, and this two, six, one sphenoid, one ethmoid, total 8. Clear? चलिए next one. Now coming to that, the which part? Facial. Facial starts with vomer, inferior nasal conch, two, lacrimal, two, zygomatic bones. यहाँ पे कहाँ nasal है? ये zygomatic, cheek, right? Then two, maxillary, one, and that inner side, two, palatine, two, palatine. Tongue जहाँ पे attach है this bone, thyroid, right? And then ear ossicles. Which are they? Straight. How many malleus? Incus. 29 bones का clarity है, right? Now, so here we have completed that the skull part, right? Here we have completed the which part? Skull. Axial में दो चीजें, one is a skull and other is a which one? One is a skull and other is a, that's our vertebral column. रिब केज का पूरा पार्ट है, रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम, वो सब इसमें आएगा, राइट? अदर देन द स्कल, जो पार्ट, सो एक्सियल में ऐसे लर्न करना, फर्स्ट दैट इज द स्कल, जिसमें हमने ये टोटल 29 अभी लर्न किए. नेक्स्ट दैट इज द स्टर्नम, नेक्स्ट इज अ रिब्स एंड नेक्स्ट इज अ वर्टिब्रल कॉलम. ये सब मिला के टोटल कितने बोन्स होंगे? 80. बोलिए समझ में आया? राइट. नाउ स्कल के बाद नेक्स्ट ले रहे हैं हम स्टर्नम. स्टर्नम लोकेशन वेंट्रल साइड, वेंट्रल मिड थोरैसिक लाइन, राइट. नेक्स्ट हाउ मेनी? 1. स्टर्नम एक ही है ना? तो स्टर्नम का नंबर ये 29 था, स्टर्नम वंस, राइट. नेक्स्ट वन आफ्टर दैट रिब्स. पता है कितने रिब्स होते हैं? 12 पेयर्स. वेरी इजी, राइट. 12 पेयर्स. तो टोटल कितने हो गए? रिब्स नहीं है, रिब 1 2 3 4 5 6 वैसे ही है, राइट. तो रिब वैसे ही 24 हो गए, राइट. नेक्स्ट वन वर्टिब्रल कॉलम, राइट. 26 वर्टिब्रे आर देयर. हाउ मेनी? 26. काउंट कर लो, हो रहा है टोटल 80. हो गए ना 80, राइट. वेरी इजी. मेन फेशियल क्रेनियल के करने, हायोइड करना है एंड दिस ईयर ऑसिकल. देन नेक्स्ट वन इज अ स्टर्नम. नेक्स्ट रिब्स कितने हैं? 12 pairs, 24. 12 pairs total, 24 ribs are there, right. Now next and the vertebral column में कितने vertebrae है? 26. ठीक है, अभी हम इसके डिटेल्स लर्न करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, 26 वर्टिब्रे है ये. हाउ मेनी? 26. 26 वर्टिब्रे. इन दैट कैन यू मेक आउट दिस शेप? सीधा नहीं है, स्लाइटली बैंड, राइट. नाउ इन दैट फर्स्ट जो है हमारे नेक रीजन में, ये देखो हमारा नेक रीजन है,
नेक रीजन के वर्टिब्रे को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल. विच वन? सर्वाइकल. रिपीट. सर्वाइकल. सर्वाइकल वर्टिब्रे टोटल 7 होते हैं. कितने? 7. ये हम काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7. तो हमारे नेक रीजन में 7 वर्टिब्रे हैं. क्लियर? नेक्स्ट है थोरेक्स रीजन. ये देखो रिब्स का दिखाई दे रहा है. रिब्स के नीचे ये पिक्चर ये फॉर्मेट में, रिब्स के नीचे क्या होता है यहाँ पे? डायफ्राम. तो आपको इमेजिन करना है कि आपका जो डायफ्राम है उतना ही पोर्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो जहां तक रिब्स है वहां तक कौन से वर्टिब्रे है? थोरासिक वर्टिब्रे. विच वन? थोरासिक. फिर थोरेक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा एब्डोमिनल. सो फ्रॉम दैट बैक साइड वहां पे वर्टिब्रे फर्स्ट जो होता है वेस्ट का जो रीजन है लंबार. विच वन? लंबार. लंबार के बाद नेक्स्ट होता है सैक्रम एंड देन कॉसिक्स. ये आपके लिए न्यू वर्ड्स है, राइट? फर्स्ट सर्वाइकल, फिर थोरासिक, फिर लंबार, फिर सैक्रम एंड कॉसिक्स. सैक्रम, आप सैक्रम में वैसे देखोगे ना तो हम एडल्ट के लिए बोलते हैं सैक्रम 1 बोन. But sacrum in case of the newborn baby, total how many? 5 bones रहते हैं वो, right? But जैसे जैसे adult में वो convert होते हैं, right? Adult में change होंगे. During that time, these bones join with each other and make a one structure. That's why अगर हम newborn babies के bones count करते तो ये 5 count करना पड़ता और हमारा 1, adult का 1. That's why I told you newborn babies then more number of bones are there compared to adult. Clear? Because newborn babies has to be delivered outside. तो उसमें वो flexibility चाहिए in this mind. Clear? So newborn babies में यहाँ पे 5 vertebrae है, but in an adult only 1. They fused with each other. Clear? Same for the coccyx. Newborn में कितने होते हैं? 4 coccyx vertebrae है. But adult में again they join and form 1. That's why here mentioned 5, fused, right? 4 fused. बोलिए, समझ में आया? क्लियर? तो पहले तो सीक्वेंस आनी चाहिए. फर्स्ट सर्वाइकल, फिर देन लंबार, सैक्रम, कॉसिक्स. रिपीट. Repeat. Cervical first. Cervical. One more time. देखो इसमें 2 कर्वेचर है, 1 and 2, right? 2 curvatures are there. Now next one, cervical vertebrae how many? 7. रिब्स कितने? 12 pairs. तो थोरासिक वर्टिब्रे भी 12 ही है. 12, राइट? लंबार 5. लंबार 5. सैक्रम 1. कॉसिक्स 1. क्लियर? कितने हुए टोटल? 26 हो गए, राइट? 26 नेम डिफरेंट लर्न नहीं करना है, वैसे ऐसे ही काउंट करना है. जस्ट सर्वाइकल 1 2 3 4 5 6 7 कट कर दो. नेक्स्ट थोरासिक 12. नेक्स्ट लंबार 5. देन सैक्रम 1 एंड कॉसिक्स 1. बोलिए, क्लियर? अंडरस्टूड दिस? श्योर? 26 वर्टिब्रे. नेक्स्ट स्लाइड. वन मोर. ओके. नाउ ये कौन सा पार्ट है? स्टर्नम. डॉर्सल और वेंट्रल? एग्जैक्टली. कैन यू मेक आउट? ये साइड पोस्ट का दिया है, ये स्टर्नम है, तो ये बैक पोर्शन, बैक डॉर्सल साइड का क्या जा रहा है? वर्टेब्रा. एंड दोनों को क्या कनेक्ट कर रहा है? रिब्स. ये समझ में आया? रिब्स कितने हैं टोटल? 12 पेयर्स, राइट? 12 पेयर्स. रिब्स का क्लासिफिकेशन है वेरी इजी, राइट? ऐसे डिवाइड करना है 1 2 7 8 9 10 11 12. 12 पेयर्स को ऐसे डिवाइड करना है 1 2 7 8 9 10 and 11 12, right? 1 to 7 we call true ribs.
right? 8, 9, 10 we call false, and 11, 12 we call floating ribs, right? Repeat. 1 to 7, 8, 9, 10. Now 1 to 7 why we call true ribs? Because ribs dorsally किसके साथ connect होता है? And ventrally sternum. So this 1 to 7 pairs of ribs, right, by their own dorsally connect to vertebral column and ventrally connect to sternum. Can you make out first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh? Directly connect किससे हो रहा है? Sternum, right? Now next, यहाँ पे दिया है 8, 9 and 10. 8, 9, 10 किसको ज्वाइन कर रहा है पहले? 7th. 8, 9, 10 join to which one? 7. And with the help of 7 join to sternum. Indirectly. समझ में आ रहा है? 8, 9, 10 first join to 7 and by that we connect to sternum. So that's why we call they are. And ये दो रिब्स दिखाई दे रहा है ये साइड पे, वैसे ही सेम यहाँ पे उसके एंड्स फ्री है, वो जस्ट डॉर्सली कनेक्ट है but ventrally not connect to the which one? Sternum, right? So this ribs we call floating ribs in our coelom body cavity, right? Floating swim वो consider नहीं करना है, they are remain free in this way, so the other organs can fit in this part. Clear? So ribs classification, 3 parts are there. First 8, 9, 10, 11, 12. Now ये रिब्स कहां से कहां अटैच होंगे? डॉर्सली, वेंट्रली, डॉर्सली, वेंट्रली, 7th, डॉर्सली, सब डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल में चेंज आएगा, इसमें वेंट्रल फ्लोटिंग फ्री. Clear? Now this one connect to vertebral column as well as what? Sternum. So this ribs, other than that true ribs, we call vertebrosternal ribs. नीट के लिए ये वर्ड याद रखना है. Which one? Vertebrosternal ribs के vertebral column and sternum के साथ connected है, right? False rib we call vertebrochondral ribs. Which one? Vertebrochondral ribs, right? And floating we call vertebral ribs only, right? Floating को क्या बोलेंगे? सिर्फ vertebral, because सिर्फ vertebral column के साथ वो connected है. Clear? Anyone have a doubt? Okay. So ribs, rib cage is formed by? Rib cage is formed by ventrally, sternum, dorsal. अभी ये dorsally vertebral column में भी हम specific में जाएंगे, right? Dorsally vertebral column, but not entire vertebral column becomes the part of this rib cage. Only which vertebrae? Thoracic vertebrae. See, thoracic vertebrae कितने हैं? 12. So consider first thoracic vertebrae जो है, right? Suppose this is the first thoracic vertebrae. तो जो first pair of ribs है वो कहाँ पे attach होगी? First thoracic पे, right? Ribs भी 12 pairs है and thoracic vertebrae भी कितने हैं? 12. ये suppose second है, second thoracic vertebrae, तो second pairs of that's ribs attached. मान लो कि ये third vertebrae है तो यहाँ पे कौन सी pair आएगी? Third. Understood this? Sure? Clear? Anyone have a doubt in this part? 80 bones? Sure? Okay. Rib cage, that's thoracic vertebrae, sternum, and then laterally which one? Ribs, right? So thoracic vertebrae mainly involved to make this rib cage, right? And in that rib cage, which organs are situated? That's the lung and heart. Lungs and heart. Clear? Now हमने skull learn किया, हमने वर्टिब्रल कॉलम भी लर्न किया, तो क्या स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कुछ कनेक्शन होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली सर्वाइकल वर्टिब्रे,
जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है, राइट, दैट मेक्स अटैचमेंट विद द विच वन, लास्ट बोन ऑफ स्कल, दैट इज ऑसिपिटल, है ना, यस और नो. सो ऑसिपिटल एंड सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, बिटवीन देम दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस वन वी कॉल आर्टिकुलेशन. इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन, राइट. नाउ आर्टिकुलेशन में एक सिंगल चीज, दैट वी हैव dicondylic skull. We have what kind of skull? Dicondylic, right? We have, that's the dicondylic skull. Dicondylic skull meaning what? अपने we can rotate our neck skull, right, up to 360, so 180, isn't it, right? But birds, owl में अपने, right, birds में even, right, in that they can rotate their neck 360. तो ऐसा क्या है, उसके पास भी नेक है, हमारे पास भी नेक है, उसके पास भी स्कल रीजन है, एंड देन फर्दर वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा ही है ना वो. तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, राइट, इन दिस ऑसिपिटल रीजन, जहाँ पे ऑसिपिटल लोब और ऑसिपिटल बोन एंड वर्टिब्रल कॉलम का क्या है, आर्टिकुलेशन. सिंगल एक्सिस को रोटेट करेंगे तो 360 हो जाएगा, यस और नो, है ना. बट हमारे में ऐसे दो होते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स. हमारे में ऐसे दो है, तो इट कैन रोटेट अप टू 180 ओनली, नॉट 360. वो कितने जस्ट हमें दे सकता है, दैट इज 180, राइट. सो वो आर्टिकुलेशन सरफेस जो होता है, दैट आर्टिकुलेशन सरफेस भी इन दिस वे, ये ऑसिपिटल बोन होता है, लास्ट बोन, एंड नेक्स्ट ओवर हियर दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, राइट. सो हमारे में रिमेंबर डाइकोंडाइलिक कंडीशन है. विच कंडीशन? डाइकोंडाइलिक कंडीशन. डाइकोंडाइलिक कंडीशन इन दैट द मूवमेंट अप टू ओनली 180, राइट. बर्ड्स में कौन सा होता है? 360. बर्ड्स में 360, राइट. इवन एम्फीबियंस में भी डाइकोंडाइलिक है. एम्फीबियंस में भी कौन सा है? डाई, हमारे जैसा, राइट. फ्रॉग कभी ऐसा रिवर्स करके देखना है, नहीं हो पाता, राइट. डाइकोंड हमारे जैसा ही है उसका. उसमें नहीं कैप्सेंट है, बोलिए, क्लियर, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. उसमें से कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क मी.